हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी संविधान का भाग 10, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, संविधान का भाग 10, द शेड्यूल्ड एंड द ट्राइबल एरियाज, पार्ट 10th। द शेड्यूल्ड एंड द ट्राइबल एरियाज 244, Constitution's Article 244, Administration of the Scheduled Areas and the Tribal Areas। अनुच्छेद 244, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में ये क्या बात करता है? 244 अनुच्छेद, 244 आर्टिकल says about in administration of scheduled areas and tribal areas. Administration of scheduled areas and tribal areas. Number 1, the provisions of the 5th schedule shall apply to the administration and control of the scheduled areas and scheduled tribes in any state other than the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Number 2, the provision of the 6th schedule shall apply to the administration of the tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. 244A, 244A article says formation of an autonomous state comprising certain tribal areas in Assam and certain of local legislature or council of ministers or both therefore. 244A says about formation of an autonomous state comprising certain tribal areas in Assam and certain of local legislature or council of ministers or both therefore. Number 1, notwithstanding anything in this constitution, parliament may by law form within the state of Assam an autonomous state comprising whether wholly or in part all or any of the tribal areas specified in part 1st of the table appended to paragraph 20 of the 6th schedule and create therefore. Number A, a body whether elected or partially nominated and partially elected to function as a legislature for the autonomous state, or B, a council of ministers or both with such constitutions, powers and functions in each case as may be specified in law. Number 2, any such law as is referred to in clause 1st may in particular A, specify the matters enumerated in the state list or the concurrent list with respect to which the legislature of the autonomous state shall have power to make laws for the whole or any part thereof, whether to the exclusion of the legislature of the state of Assam or otherwise. B, define the matters with respect to which the executive power of the autonomous state shall extend. Number C, provide that any tax levied by the state of Assam shall be assigned to the autonomous state in so far as the proceeds thereof are attributable to the autonomous state. Number D, provided that any reference to a state in any article of this constitution shall be construed as including a reference to the autonomous state, and E, make such. Number E,
make such supplemental, incidental or consequential provisions as may be deemed necessary. Number third, an amended, oh sorry, number third, an amendment of any such law as aforesaid in so far as such amendment relates to any of the matters specified in subclause A or subclause B of subclause second shall have no effect unless the amendment is passed in each house of parliament by not less than 2/3 of members present and voting. Number 4, any such law as is referred to in this article shall not be deemed to be an amendment of this constitution for the purposes of Article 368, notwithstanding that it contains any provision which amends or has the effect of amending this constitution. अब मैं पढ़ लेती हूँ हिंदी में। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। संविधान का भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में बात की जा रही है। अनुच्छेद 244 कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में। नंबर 1, 5वीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों या अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे। नंबर 2, 6ठी अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के लिए लागू होंगे। अनुच्छेद 244 का बताता है कि असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करके असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी ऑटोनोमस राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन करना। संविधान का अनुच्छेद 244 का बताता है कि असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करके एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या विधान परिषद का या दोनों का सृजन करना। नंबर 1, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा असम राज्य के भीतर एक स्वशासी राज्य बना सकेगी। एक स्वशासी राज्य बना सकेगी जिसमें 6ठी अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी के भाग 1 में विनिर्दिष्ट सभी या कोई जनजाति क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट होंगे और उसके लिए नंबर का उस स्वशासी राज्य के विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित या भागतः नाम निर्देशित और भागतः निर्वाचित निकाय का नंबर का मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन कर सकेगी, जिनमें से प्रत्येक का गठन शक्तियाँ कृत्य वे होंगे जो उस विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं, जिनमें प्रत्येक का गठन, उनका कॉम्पोजिशन, उनकी पावर्स और उनके फंक्शंस वे होंगे जो उस विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। नंबर 2, खंड 1 में विनिर्दिष्ट विधि विशिष्टतः नंबर का राज्य सूची या समवर्ती सूची में, राज्य सूची या समवर्ती सूची में प्रगणित वे विषय विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनके संबंध में स्वशासी राज्य के विधानमंडल को संपूर्ण स्वशासी राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति असम राज्य के विधानमंडल का अपवर्जन करके या अन्यथा होगी। जो असम राज्य का जो विधानमंडल है उसका अपवर्जन करके या अन्यथा होगी। नंबर खा, वे विषय परिनिश्चित कर सकेगी जिन पर उस स्वशासी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा
नंबर गा, यह उपबंध कर सकेगी कि असम राज्य द्वारा उद्ग्रहित कोई कर स्वशासी राज्य को वहां तक सौंपा जाएगा जहां तक उसके आगम स्वशासी राज्य से प्राप्त हुए माने जा सकते हैं। नंबर घ, ये उपबंध कर सकेगी कि संविधान के किसी अनुच्छेद में राज्य के प्रति किसी निर्देश का या अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत स्वशासी यानी ऑटोनमस राज्य के प्रति निर्देश है और वहाँ ऐसे अनुपूरक आनुषंगिक या पारिणामिक उपबंध कर सकेगी जो आवश्यक समझे जाएं। नंबर 3, पूर्वोक्त प्रकार की किसी विधि का कोई संशोधन जहां तक वह संशोधन खंड 2 के उपखंड का या उपखंड खा में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित है तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक वह संशोधन संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मत देने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा पारित नहीं कर दिया जाता है। नंबर 4, इस अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट या निर्दिष्ट विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है। क्या कहा जा रहा है? इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा। यानी इसमें कोई भी जो सरकार है वो संशोधन करना चाहे तो उसमें इस बात के होते संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है। अब मैं पढ़ देती हूँ इसका अमेंडमेंट से लेकर पार्ट 10 में उसमें क्या कुछ संशोधन हुआ, कौन से वर्ड को निकाला गया, स्थापित किया गया, प्रभाव में लाया गया, लेटर्स शब्द या जो भी है। नंबर 1, द वर्ड्स एंड लेटर्स स्पेसिफाइड इन पार्ट ए और पार्ट बी नंबर 1, the words and letters specified in part A और पार्ट बी, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके ऊपर पार्ट 10 में क्या कुछ संशोधन हुआ है। नंबर 1, द वर्ड्स एंड लेटर्स स्पेसिफाइड इन पार्ट ए और पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल omitted by the Constitution 7th Amendment Act 1956 S29 and Schedule Number 2, substituted by the Northeastern Areas Reorganization Act 1971, 81 of 1980 Act 1971, 81 of 1971 S71 for the state of Assam WEF 21st/1 1972. Number 3, substituted by the Constitution 49th Amendment Act 1984 S2 for the Meghalaya WEF 1st/4 1985. Substituted. Number 4, substituted by the State of Mizoram Act 1986, 34 of 1986, S29 for Meghalaya and Tripura WEF 20/2 1987. Number 5, substituted by S29 IVID for Meghalaya and Tripura and the Union Territory of Mizoram WEF 20/2 1987. Number 6, inserted by the Constitution 22nd Amendment Act 1969 S2. Number 7, substituted by the Northeastern Areas Reorganization Act 1971, 81 of 1971 S71 for Part A WEF
21/1 1972। इसमें जो संशोधन हुआ है मैं हिंदी में बता देती हूँ। नंबर 1, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्संगठन अधिनियम 1971। 1971 का 81 की धारा 71 द्वारा 21/1/1982 से असम राज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 2, मिजोरम राज्य अधिनियम 1986। 1986 का 34 की धारा 39 द्वारा 20/2/1987 से मेघालय और त्रिपुरा शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 3, संविधान 49वां संशोधन अधिनियम 1984 की धारा 2 द्वारा और मेघालय शब्दों के स्थान पर 1/4/1985 से प्रतिस्थापित। नंबर 4, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा पहली अनुसूची के भाग का या भाग ख में विनिर्दिष्ट शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया है। नंबर 5, मिजोरम राज्य अधिनियम 1986। 1986 का 34 की धारा 39 द्वारा 20/2/1987 से मेघालय और त्रिपुरा राज्यों और मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 6, संविधान 22वां संशोधन अधिनियम 1969 की धारा 2 द्वारा अंतर्स्थापित। नंबर 7, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्संगठन अधिनियम 1971। 1971 का 81 की धारा 71 द्वारा 21/1/1972 से भाग का के स्थान पर प्रतिस्थापित। तो चलिए आज के लिए इतना ही आज के लिए इतना ही। कल मैं पढ़ूंगी संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध, भाग 11, अध्याय 1, विधायी संबंधी विधायी शक्तियों का वितरण। तो ठीक है दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक एंड कमेंट प्लीज़। थैंक यू।